So today what I have for you? Today I'm going to start my first formal class of TGT English 2022, and you will come to know in this class I will tell you about what I will tell you about theater of absurd, and in this class you will learn something. What in this class you will learn something. What is absurdism? How did it come? When did it come? And how do you find its characteristics in literature? How do you find its characteristics in literature? Yeah, what type of vital role has been played by dramatists who believed in absurdism? या who were the pioneer dramatists? तो मैं थोड़ा सा कुछ आपको शेयर करूंगा, फिर मैं अपनी बात को रखूंगा। एक तो चीज मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी जो क्लास है वो किससे जुड़ी हुई है। हमारी क्लास जो है वो जुड़ी हुई है थिएटर ऑफ एब्सर्ड, थिएटर ऑफ एब्सर्ड। इस क्लास में मैं आपको क्या क्या दिखाऊंगा, क्या क्या बताऊंगा, क्या क्या व्हाट विल यू लर्न। यू विल कम टू नो अबाउट व्हाट, यू विल कम टू नो अबाउट एब्सर्डिज्म। लर्न एब्सर्डिज्म। दूसरा पॉइंट, यू विल लर्न आइडियर ड्रामेटिस्ट who believed in BELIEVED, who believed in this theory. तीसरा, you will come to know, you will come to know when it originated. These points you will come to know. So what I want to tell you, these are the significant points, these are the important points, but I will also share with you some other significant points. तो लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है जो मैं स्टोरी टेलिंग मेथड से आपको मैं बताऊंगा कि यार आज की क्लास में हम लोग इन चीजों को सीखेंगे या इसके बारे में बात करेंगे। Here I want to ask a question to all of you. It will be a very interactive session. Just tell me, if I say that he is an absurd man, या अगर if I use the word कि उसका जो thought है या he has absurd thought, what do you mean by absurd here? अगर यहाँ पे he is an absurd man या he has an absurd thought या he possesses absurd thought या he has absurd thought, what do you mean by this word absurd? ऑलरेडी उसको मैंने लिखा हुआ है ABSURD। दूसरा चीज की have you heard this word earlier or not? If you have Yes, heard, sir. yeah, you have heard. So if you have heard it, what do you mean by this word? Second important point, have you heard it when you were doing graduation? Have you heard it when you were doing post graduation? Third point, uh, is it a word which is only related to drama? Is it a word which is uh, which is related to, you can say कि बोथ ड्रामा, नॉवेल, पोइट्री, इन सब चीजों से जो है जो भी लिटरेरी फॉर्म्स है। और क्या ये रोमांटिक एज में आया है, विक्टोरियन एज में आया है या मॉडर्न एज में आया है? इफ इट केम इन मॉडर्न एज तो इसके आने का रीजन क्या था, क्या उसका रीजन था, क्या कारण था? तो इसको ले करके आपको जो है आप में से
कोई भी मुझे जवाब दे सकता है कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं? व्हाट यू हैव हर्ड, आपने इसके बारे में क्या सुना? एनीवन? Sir, yes, sir. यस, Sir, I heard in when I was in graduation this या word absurd, and it means meaningless. meaningless. It means Yes, sir. meaningless. It means that if I use the word that he has what you can say he is an absurd man, so that man is meaningless. If I use that he has absurd thought, it means that his thoughts are meaningless. एक मैडम ने एक बात बताया कि एब्जर्ड का जो एक मतलब निकलता है वो मतलब क्या निकलता है? एक मतलब उसका निकलता है मीनिंगलेस, MEANINGLES। एक तो मीनिंगलेस आपका एक सेंस समझ में आता है। दूसरा, इसके अलावा ये भी कहा जाता है, इसका एक और मतलब होता है इलॉजिकल। इसका एक और भी मतलब होता है अनएक्सप्लेनेबल। अनएक्सप्लेनेबल। सो यू फाइंड कि अगर आप एब्जर्ड की बात करते हैं तो मीनिंगलेस, यू फाइंड इलॉजिकल, यू फाइंड अनएक्सप्लेनेबल। ठीक है, ये चीजें हमारे भी समझ में आ गई, आपके भी समझ में आ गई कि एब्जर्ड का मतलब ये चीजें होती है। अब उसके बाद मैडम ने ये बताया कि उन्होंने इस शब्द को कब सुना था? व्हेन शी वाज डूइंग ग्रेजुएशन। व्हेन यू आर डूइंग ग्रेजुएशन, आपने इसको सुना था। लेकिन अगर आप देखेंगे कि इस शब्द को इवन वी फाइंड इन आवर कॉमन लाइफ आल्सो, इस शब्द को हम अपने कॉमन लाइफ में भी सुनते रहते हैं। जब हम इस शब्द को अपने कॉमन लाइफ में सुनते हैं तो कोई भी ऐसी चीज जो इलॉजिकल है, आप कह सकते हैं कि अनएक्सप्लेनेबल है, मीनिंगलेस है और फ्रूट फ्रूटलेस है, जिसमें कोई चीज का लॉजिक बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता, जिसके विचार में कोई तार्किकता नहीं होती, उन सब चीजों को किस कैटेगरी में रखा जाता है? एब्जर्ड की कैटेगरी में। ही इज एन एब्जर्डिस्ट मैन, या ही इज एन एब्जर्डिस्ट मैन। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शब्द है, ये एक शब्द तो है जो आपस में हम लोग इस तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन लिटरेचर में एक पूरा मूवमेंट की शक्ल में आया था। इन लिटरेचर इट केम इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट। दैट मूवमेंट इज नोन एज थिएटर ऑफ एब्जर्ड और एब्जर्डिस्ट मूवमेंट। मेरी बात को ध्यान में रखिएगा। हम तो कॉमन वे में एक आपको डे टू डे लाइफ में समझाए कि एब्जर्डिज्म का मतलब क्या होता है। इलॉजिकल, मीनिंगलेस, अनएक्सप्लेनेबल। आप इसके अलावा और भी हम चीजें ढूंढ सकते हैं कि जो फ्रूटलेस हो, दिस थिंग। लेकिन फिर मैंने आपको ये बताया कि ये जो है लिटरेचर में एक पूरा मूवमेंट के रूप में आया था, और जब ये मूवमेंट के रूप में आया था तो उस मूवमेंट का जो नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? उसको नाम दिया गया थिएटर ऑफ एब्जर्ड, या एब्जर्डिस्ट, एब्जर्डिज्म। TISM होना चाहिए। अब यहाँ पे जब आपने देखा कि थिएटर शब्द लगा है तो ये बहुत ही अच्छे ढंग से हमें पता चलता है कि इस मूवमेंट को जो अप्लाई किया गया ज्यादातर ड्रामा में अप्लाई किया गया। इसी वजह से इसके साथ जो है वर्ड के क्या जुड़ा? थिएटर जुड़ा हुआ है। तो एक और पॉइंट चला पता चलता है कि द मूवमेंट वाज अप्लाइड वेयर द मूवमेंट वाज अप्लाइड इन ड्रामा। जो मूवमेंट है उसको ड्रामा में अप्लाई किया गया। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसको अगर हम ड्रामा में अप्लाई करते हैं तो किस तरह का ड्रामा? एक ऐसा ड्रामा जिसमें जो है आप कह सकते हैं इलॉजिकल बातें हो, एक ऐसा ड्रामा
जिसमें आप कह सकते हैं कि मीनिंगलेस बातें कही गई हो, आप समझने की कोशिश करिए कि मैं वहां से क्यों जोड़ रहा हूँ, डेली लाइफ से आपको मैं कैसे थिएटर के साथ लेके जा रहा हूँ। जस्ट आई वांट टू नो, आप लोग इस मेथड से बोर तो नहीं हो रहे? व्हाट आई वांट टू से, No, sir. नो सर। तो वांट टू टेल यू कि आपको ये समझना है कि वो शब्द लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आप कैसे देख रहे हैं। फिर आपको ये समझना है कि उस शब्द को आप जो है कैसे समझ सकते हैं। अ, आप ये कह सकते हैं कि लिटरेचर में कैसे अप्लाई किया गया, क्योंकि वो चीज पहले लिटरेचर में आई है, डे टू डे लाइफ में भी रहा होगा उस जमाने में भी। लेकिन जब ये वर्ड आता है और इस शब्द को लाने वाले आदमी का नाम मार्टिन एस्ली रहा, वो सारी बातें होगी, वो क्वेश्चन बनता है, बताया जाएगा। लेकिन पहले समझना जरूरी है कि क्यों है ये शब्द। जब ड्रामा में आप अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब कि अ टाइप ऑफ प्ले आर अ टाइप ऑफ लिटरेरी पीस दैट इज मीनिंगलेस, जिसपे किसी तरह का लॉजिक ना हो, इलॉजिकल हो, अनएक्सप्लेनेबल हो। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई ड्रामा इलॉजिकल हो सकता है? क्या कोई ड्रामा अनएक्सप्लेनेबल हो सकता है? क्या कोई ड्रामा आप कह सकते हैं मीनिंगलेस हो सकता है? तो शायद लोग जवाब देंगे कि नहीं, ये संभव नहीं है। लेकिन रियली में अगर आपकी लाइफ अनएक्सप्लेनेबल है, अगर आपका लाइफ में ऐसी आइडियोलॉजी में द पीपल बिलीव, दैट आइडियोलॉजी इज नोन एज एब्सर्डिज्म। और यहाँ पे आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब भी किसी शब्द के लास्ट में आई एस एम लगता है, जिसको इज्म कहा जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन इज्म नहीं होता, इज्म। जैसे जिसम वैसे ही इज्म। तो इज्म का मतलब होता है कि प्रैक्टिसिंग और बिलीविंग इन अ पार्टिकुलर आइडियोलॉजी, किसी नई आइडियोलॉजी में विश्वास करना, किसी नई आइडियोलॉजी की प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिसिंग और बिलीविंग इन अ पार्टिकुलर आइडियोलॉजी। उसी को हिंदी में क्या कहा जाता है? वाद कहा जाता है। जैसे मॉडर्निज्म, आधुनिक वाद, इसका मतलब कि एक नई आइडियोलॉजी आती है। आइडियोलॉजी माने विचारधारा, एक नई विचारधारा। जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म, इसका मतलब मॉडर्निज्म के बाद एक नई विचारधारा आई है। तो आपको किसी भी शब्द में इसी तरह से जब आप एब्सर्डिज्म कहते हैं तो इसका मतलब एक ऐसी विचारधारा जो चीजों को बहुत ही तर्क संगत ढंग से नहीं विश्वास करती, कि चीजों को लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, उसको में रीजन लगाए, बल्कि वो चीजों को समझती है कि ये सब चीजें फालतू की चीजें, अनएक्सप्लेनेबल। तो ये जो आइडियोलॉजी आई आई हमारी लाइफ में भी आई। जब ये लाइफ में आती है तो श्योरली एंड सर्टेनली इट विल कम इन लिटरेचर। जब ये हमारी लाइफ में आएगी तो ये लिटरेचर में भी आएगा। कैसे आएगा? आई जस्ट वांट टू टेल यू अ पॉइंट। बिकॉज लिटरेचर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, लिटरेचर इज नॉट लाइफ। जैसे हम लोग ये कह देते हैं कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। नो, लिटरेचर इज नॉट द मिरर ऑफ सोसाइटी, इट रिफ्लेक्ट्स सोसाइटी। जब आप ये कह देते हैं कि लिटरेचर इज लाइफ, तो इसका मतलब कि लिटरेचर खुद जिंदगी है, और लिटरेचर और लाइफ को आप मेटाफोरिकल वे में प्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं, लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स लाइफ। लिटरेचर जो है इंसान के जीवन के कुछ हिस्से को रिफ्लेक्ट करता है। इट डजंट प्रेजेंट द होल लाइफ, इट ओनली रिफ्लेक्ट्स लाइफ, एंड इट रिफ्लेक्ट द पार्ट ऑफ लाइफ। तो जब लिटरेचर मॉडर्न एज का लिखा जा रहा होगा, उस समय जो है एक ऐसा ग्रुप रहा होगा जिसने जीवन के इस हिस्से को पकड़ा होगा, जिसको हम कौन सा हिस्सा कह रहे हैं? एब्सर्डिस्ट लाइफ, जिसको हम कहते हैं एब्सर्डिस्ट लाइफ। सही से अगर एब्जर्ड वर्ड होता है, एब्जर्डिस्ट लाइफ, जिसको हम एब्जर्डिस्ट लाइफ कह रहे हैं।
इस हिस्से को लिटरेचर में कुछ लोगों ने पकड़ा होगा, बात किया होगा। क्यों और किस सिचुएशन में ये आया? ये जो है मॉडर्न एज में आता है। थिएटर ऑफ एब्सर्ड एक मूवमेंट के रूप में, स्पेशली ड्रामा में, या एक पूरा लिटरेरी मूवमेंट के रूप में, यह किस एज में आता है? मॉडर्न एज में आता है। ये मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ, इट केम इन मॉडर्न एज। इट केम इन एज। तो मॉडर्न एज का डेट है 1901 से लेकर 1945 तक। इट केम इन मॉडर्न एज 1901 से लेकर 1945 तक। सो थिएटर ऑफ एब्सर्ड केम इन मॉडर्न एज, एंड मॉडर्न एज जो आपका था, दैट वाज रिमार्केबल फॉर द टू वर्ल्ड। मॉडर्न एज है वह रिमार्केबल रहा किसके लिए? टू वर्ल्ड वार्स के लिए। हियर आई वांट टू टेल यू, इट वाज रिमार्केबल फॉर टू वर्ल्ड वार्स। इट वाज remarkable, BLE, remarkable for two world wars। हम सबको पता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो 1914 से 1918। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945। ये मॉडर्न एज जो रिमार्केबल रहा है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए, सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए रिमार्केबल रहा है। हियर आई वांट टू टेल यू, जब आप वर्ल्ड वार की बात करते हैं तो वर्ल्ड वार डज नॉट मीन दैट यू आर यूजिंग क्रैकर्स। आप जो है क्रैकर्स का नहीं यूज कर रहे। इन वर्ल्ड वार का मतलब ये होता है कि देर इज नो गारंटी ऑफ लाइफ, एंड ऑल ओवर द साइड इन द इंटायर वर्ल्ड देयर आर क्लाउड्स ऑफ डेथ, देयर आर क्लाउड्स ऑफ ट्राउमा, देयर आर क्लाउड्स ऑफ पेन, स्टेन, अनरेस्ट एंड एंजाइटी। मेरे शब्दों को आप ध्यान में रखिएगा। मैंने आपसे बताया कि जब वर्ल्ड वार होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कोई फेस्टिवल मना रहे हैं और क्रैकर्स का यूज कर रहे हैं। क्रैकर्स तो ऑफनली वी यूज टू शो आर जॉयस, या टू शो आर प्लेजर, खुशियों को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं। बट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार यू फाइंड द ड्रॉपिंग ऑफ द बॉम्ब। यू कैन जस्ट सी battle between war between Ukraine and Russia. Ukraine and Russia. If you go even on social media, yeah, if you see the screen of TV, if you start any channel, you can just see crying, weeping, lamenting, and 20,000 students were stayed there. They have gone abroad to study there. Now they are coming back. Even some students were killed. I just want to say, वहां के लोग जब वर्ल्ड वार होगा तो लोगों की लाइफ कैसे होगी? अगर कहीं पे वर्ल्ड वार हो रहा है तो लोगों की जो लाइफ होगी, उस लाइफ में आप ये समझने की कोशिश करिए क्या होगा। ट्राउमा, ट्राउमा क्या होता है? मेंटल डिसऑर्डर। जो मेंटल पेन है वो इतना ज्यादा होगा कि लोगों में बेचैनी, एंजाइटी, नींद का ना आना, डर का होना, इस तरह के वातावरण आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होने लगते हैं। और जब उनके अंदर इस तरह के वातावरण डेवलप होते हैं तो वो एक बीमारी की हालत में चले जाते हैं। वो एक दूसरी आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगते हैं। और तब उनका ये कहना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइफ, व्हाट इज, दे स्टार्ट टू आस्क क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइफ। इस जीवन का क्या मकसद है? मैंने अभी आपको बताया वर्ल्ड वार हुआ,
वर्ल्ड वार जब होगा तो मैं उस शब्दों को जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैं उसको लिखना चाहूंगा कि अगर वर्ल्ड वार होगा तो श्योरली है कि क्या क्या आपको देखने को मिलेगा. यू विल कम टू नो व्हाट यू विल फाइंड. ट्राउमा, TRAUMA. You will find pain. You will find stain. You will find agony. You will find unrest. You will find anxiety. No guarantee of life. Of life. Fear. Well, atmosphere. Fear and terrible atmosphere. I here just want to ask. मैं सारी चीजों को फिर से बता दूं. ट्राउमा एक मेंटल डिसऑर्डर होगा. अंदर से आदमी इतना परेशान हो जाएगा कि वो कुछ समझ नहीं पाता क्या किया जाए. उसको कष्ट होगा, स्टेन तमाम तरह के होंगे, एग्नी होगी, अनरेस्ट होगा. इट मीन्स कि वो नॉर्मल लाइफ, एंग्जाइटी होगा, नो गारंटी ऑफ लाइफ होगा, फियर होगा, टेरिबल एटमॉस्फेयर होगा, ऑल दिस थिंग. और वो जो है कहाँ पे पहुंच जाएगा, इन सबका रिजल्ट ये होगा कि वह एबनॉर्मल लाइफ जीने लगेगा. कौन सी लाइफ? एबनॉर्मल लाइफ. अगर वह एबनॉर्मल लाइफ जीने लगता है तो if he starts to live, if he or she starts to live abnormal life, I just want to know कि क्या ऐसा आदमी जो एबनॉर्मल लाइफ जिएगा, क्या हम उससे ये उम्मीद करें कि वो बैठ करके आ, कोई मूवी देखेगा? अगर वो एबनॉर्मल लाइफ जी रहा है तो क्या वो लता मंगेशकर के गाने सुनेगा? एबनॉर्मलिटी के कुछ सिम्टम्स होते हैं. इफ यू एंड आई आर टॉकिंग, इसका मतलब हम लोग कुछ हद तक नॉर्मल है. तो ध्यान में रखिए मेरी बात को. मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग कुछ हद तक नॉर्मल है. आप इतना सही कहिएगा कि सर आपको एबनॉर्मल कह रहे हैं. वी ऑल आर एबनॉर्मल इन पोस्ट मॉडर्न एज. हम सारे लोग पोस्ट मॉडर्न एज में एबनॉर्मल. वी ऑल आर, इट सीम्स दैट वी ऑल आर मैड पीपल एंड देयर इज अनदर टाइप ऑफ एब्सर्डिटी इन आवर लाइफ. एक दूसरी तरह की एब्सर्डिटी हमारी लाइफ में आई हुई है. वो किस तरह का है? अभी तक इलेक्शन कैंपेन चल रहा था तो उस इलेक्शन कैंपेन में जो बातें नेताओं के द्वारा बोली गई थी उनमें कितना मोरालिटी थी, कितना एथिकली वो स्ट्रांग बातें कर रहे थे, ये आपने देखा. ट्विटर से अगर आप जुड़े होंगे, कोई एक स्टेटमेंट दिया जाता है तो उसके आप देखेंगे कि इतनी सारी एब्यूजिंग वर्ड्स यूज किया जाता है ट्विटर पे. कभी कभार ऐसा लगता है कि जितने लोग हैं सब क्या बैड है, सब नॉर्मल लाइफ नहीं जी रहे. वाई आर दे एब्यूजिंग ईच अदर? इवन दे नो इट वेरी वेल कि वे दे ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, दे आर लिविंग देयर. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया जब भी आप सर्च करिए तो ऐसा लगता है जैसे वहां वॉर चल रहा है. नॉर्मल लाइफ ठीक है, लोग अपने घरों में है, बस पे आ रहे हैं, ट्रेन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहां थोड़ी बहुत लोगों की बातचीत हो जा रही है. बट ये पता नहीं शमीम को ही लगता है या आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि ट्विटर पे जाने के बाद, फेसबुक पे जाने के बाद, व्हाट्सएप के किसी ग्रुप पे जाने के बाद जहां दो अलग आइडियोलॉजी है, इट सीम्स दैट पीपल आर बैड, पीपल आर एबनॉर्मल, पीपल आर फाइटिंग विद ईच अदर. पीपल आर फाइटिंग विद ईच अदर. आई जस्ट वांट टू नो कि आई राइट और नॉट. ये आपका मैं जवाब सुनूंगा फिर मैं बताऊंगा. मैंने बताया कि मैं सारी बातें एक स्टोरी मेथड में आपको समझाना चाहता हूँ. हो सकता है आपको लग रहा हो कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट लिटरेरी टर्म को समझाने का इससे बेहतर तरीका मेरे अपने समझ में नहीं आ रहा, खास करके इसको. आपका क्या ओपिनियन? हाउ डू यू सी, हाउ डू यू फाइंड दिस एज, द एज ऑफ सोशल मीडिया? हाउ डू यू सी दिस पार्टिकुलर टाइम जिसमें हम रह रहे हैं? यू कैन रिस्पॉन्ड, खुल करके आप बोलिए, रिस्पॉन्ड.
We have Seema madam, Kanchan madam, Vinod ji, Dal Singh ji, Brajesh ji, Sohani madam, Malamika ji. You all can respond. How do you see this age, especially when you are unemployed, when you don't have job, when you don't have any opportunity? Don't see this statement in the light of you can say कि any political propaganda, any political ideology, or don't add this statement with any particular party. Just see कि अगर आप unemployed है, आपके पास पैसा नहीं है, घर में अगर बच्चा बीमार है, सासू माँ बीमार है, हस्बैंड आपके बाहर गए हैं कमाने के लिए, थोड़ा बहुत कमा करके आते हैं, उससे घर का डेली खर्चा तो चल जा रहा है लेकिन बच्चे का इलाज नहीं हो रहा है, या और, तो आपका क्या रिएक्शन हस्बैंड पर होगा, हस्बैंड का क्या रिएक्शन होगा, एंड हाउ डू यू टेक योर सासू माता या घर का कोई भी सदस्य, वही ओनली सासू माता कोई भी, तो उसमें एक आपको लगेगा एक झल्लाहट होती है, ये बीमार है मैं कैसे करूं, एक अंदर से एक साइकोलॉजिकल एक ऐसा टेरर होता है कि हम सेफ नहीं महसूस करते, हम सेफ नहीं महसूस करते। सो ऐसे ही जो मॉडर्न एज रहा है, जहां पे ड्रॉपिंग ऑफ द बॉम्ब था, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड द सिचुएशन, या जब आपको उससे ज्यादा खतरनाक चीज तब देखने को मिला होगा जब अभी कोविड का समय चल रहा था, डेल्टा वेरिएंट ने कहर ढाया था यूपी स्टेट में, और वहां पर आपने देखा होगा कि कैसे लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, द पीपल वर इन ट्रबल, द पीपल वर टेरिफाइंग, द पीपल वर इन हॉरिबल सिचुएशन। तो उन सब लोगों का एक एक पॉइंट निकल करके आ रहा था कि लग रहा है कि धरती फना हो जाएगी, या ऐसी जिंदगी का क्या मतलब है जहां हम एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। कुछ ना कुछ इस तरह के तमाम क्वेश्चन, जब आप अपनी लाइफ को लेकर क्वेश्चन खड़ा करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि देर इज नो मीनिंग ऑफ दिस लाइफ, वी आर लिविंग लाइक वॉर्म, सब कीड़े मकोड़े जैसे रह रहे हैं, देर इज नो पर्पस इन आवर लाइफ, लाइफ इज मीनिंगलेस, लाइफ इज इलॉजिकल, लाइफ इज फ्रूटलेस। तो उस समय जो है क्या होता है कि पूरी की पूरी जो केमिस्ट्री है, द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, यू विल कम टू नो द फिलोसफी ऑफ लाइफ, यू विल कम टू नो द नेचर ऑफ लाइफ, ये सारी की सारी चीजें क्या होती है, आपको आपको देखने को लगेगा कि ये बदल जाती है चीजें। अरे ये थे नहीं था ना, कई जगह पढ़ा रहे थे आप, मतलब पढ़ाए हैं क्लियर पे। तो वो चीजें आपको जो है क्या होता है कि बदली हुई नजर आती है, या वो सब चीजें उसमें देखने को मिलता है। Here I just want to tell you, if you compare what, if you compare, you can say your life, that is a normal life, या day to day life, and if you compare the man who is in the battlefield, तो हमें समझ में आता है कि यार रियली में कितना प्रॉब्लमेटिक होता है। आई एम शेयरिंग हियर अ पिक्चर, उससे आपको चीजें और समझ में आएगा अगर वो इमेज मुझे मिल गई। तो हियर यू विल कम टू नो कि आई एम शेयरिंग विद यू। Missing, perhaps missing that picture. Uh, Give me 1 minute. Give me 1 minute. Sharing with you. I think it's visible.
Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I just want to tell you, what do you see? You have to explain. Do you find absurdity in this picture? Do you find absurdity? No, sir. Then what do you see? There is a Sir, soldier. There is a soldier, and this soldier is in uniform. There is a what? There is a this gun. I just want to know, what do we say to our child? What do we say to our children? Do we want to give them gun or pen? हम लोग अपने बच्चे के हाथ में क्या देना चाहते हैं? गन और पेन? Sir, pen. ठीक है, पेन देना चाहते हैं. ठीक है, ओके, दैट्स गुड. वी वांट टू गिव पेन. Then you find कि this soldier is a man. He has heart, he has emotion, he has feelings, he has what we have. Try to understand. उसके पास वो सब कुछ है जो हमारे पास है. He feels hunger, he feels joy, he has smile, he has tears, he has joys and he has sorrow. ठीक है. शायद ऐसा लगता है कि this soldier is on border and this soldier is a married person. उसकी कोई बेबी होगी, ही शी बेबी और ही बेबी, जो भी हो. यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये सोल्जर कम है बल्कि पापा ज्यादा है, और ये उसकी रियल बच्ची नहीं है. इस बच्ची के हाथ में वो जो कुछ दे रहा है, इस बच्ची के हाथ में दे रहा है. क्या ये जो दोनों के बीच का जो ये रिलेशन है, यह रिलेशन में क्या आपको लव नजर आ रहा है? क्या आपको कंपेशन नजर आ रहा है? क्या आपको मानवता नजर आ रही है? क्या आपको उदारता नजर आ रही है? खटाखट Yes, sir. जवाब दीजिए. Yes, sir. Yes, sir. जब तक आप इंटरेक्टिव नहीं होगे तो मेरे स्टोरी टेलिंग का कोई मकसद नहीं होगा. यू हैव टू रिस्पॉन्ड मी, यू हैव टू इंटरेक्ट विद, देन आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन. ये पूरी इमेज आपको थिएटर ऑफ एब्जर्ड समझा देगी. इसके बाद मुझे केवल फैक्ट आपको बताना होगा. ये जो इमेज है, यह इमेज ये बता रही है कि ये भी सोल्जर है, जिसे हम सोल्जर के रूप में देखते हैं. सोल्जर इज नॉट अ रोबोट, सोल्जर इज नॉट अ मशीन, सोल्जर इज नॉट अ कंप्यूटर. A soldier is a man like you, like us. He has heart, he has emotion, he has feeling. But a soldier has a type of duty. And what duty? वो ड्यूटी ये है कि इस सोल्जर को का जीवन का एक उद्देश्य, उसको बैटलफील्ड में जाना है, वतन की रक्षा करनी है. वतन की रक्षा करते ही उसको शहीद हो जाना है. वतन की रक्षा किससे करनी? एलियन से नहीं करना है, अपने जैसे हमशक्ल इंसानों से करना है. जो यूक्रेन, ये पिक्चर यूक्रेन का नहीं, कहीं और का होगा. जो यूक्रेन कभी रूस का हिस्सा था, कभी यूक्रेन के निवासी ही रूस के निवासी रहे होंगे, आज उन्हीं के साथ कैसा हो रहा है. पुतिन हो सकता है कि अपने घर में बैठे हो सकता है उनकी लड़की या उनकी बेटी कहीं विदेश में एक दूसरी जगह पढ़ रही वो चीजें कर रही हो. जेलेंस्की का फैमिली सेफ हो सकता है कि जब जेलेंस्की के साथ कोई दुर्घटना होने वाली हो तो जेलेंस्की को अमेरिकन सोल्जर किसी सुरक्षित जगह पहुंचा दे. मारा कौन गया? सोल्जर्स मारा गया, और इसके जैसी प्यारी बच्चियां मारी गई या वो लोग मारे गए. नुकसान आम आदमी का हुआ. अब हमने जो बताया कि ये सोल्जर मैरिड है, ये शायद किसी बच्ची का फादर होगा, किसी बच्चे का फादर होगा. उसके अंदर लव है, अफेक्शन है. लेकिन उसने जब इस बच्ची को देखा तो एक उसके अंदर जो है फादरहुड आया, और वह फादरहुड उसको मजबूर कर देता है कि उस बच्ची को अपनी मानवता की, आई एम अ सोल्जर, आई हैव यूनिफॉर्म, आई हैव अ गन, बट माई हार्ट डजंट से दैट आई हैव टू किल एनीवन. आई हैव टू परफॉर्म माई ड्यूटी ऑन बिहाफ ऑफ, यू कैन से लीडर्स का, या जो भी लोग हैं उनके कहने पे आई हैव टू परफॉर्म माय ड्यूटी. बट ऑन द अदर हैंड
I have another अवतार, I have another incarnation, that is the incarnation of a father. मेरी एक दूसरी भी शक्ल है, वह शक्ल एक पिता की है, वह शक्ल एक जो है अंकल की हो सकती है, एक मैटरनल अंकल की हो सकती है, जिसमें वह उसको शायद लॉलीपॉप दे रहा है। इतनी इमेज आपको ये बताती है कि यहाँ पर एब्सर्डिज्म नहीं है, लेकिन इसी इमेज में मुझे एब्सर्डिज्म नजर आ रहा है। कौन सी? ये जो कंटीले तार है। क्या आप अपने जीवन में कंटीले तारों को अनुमति देते हैं कि ये तार आए? डू यू गिव परमिशन No, सच sir. टाइप ऑफ फेंसिंग? आप कभी अनुमति नहीं देंगे कि ये आए। ये जो तार है, ये तार जो है क्या कर रहा है, एक 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 बाप को बेटी से मिलने नहीं दे रहा है। ये जो तार है, एक इंसान को दूसरे इंसान से मिलने नहीं दे रहा है। और ऐसा लगता है कि ये जो सोल्जर है, थका है, टायर्ड है, चिंतित है, उसको अपने परिवार की याद आ रही है। और एक समय ऐसा आएगा जब ये डीप डिप्रेशन में चला जाएगा, तब ये सोचेगा कि व्हाट इज द मकसद, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। तब वो इस पर सोचना शुरू कर देगा, इस जीवन का क्या मकसद है, कि मैं यहाँ पे दूसरे के परिवार को मार रहा हूँ, मेरे परिवार को कोई और कत्ल कर रहा है, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, जंग में हमें क्या मिला, उनको क्या मिला, केवल हत्या के अलावा, हत्या के अलावा। सो ये एक क्वेश्चन है, ये एक इमेज है जिस पर आप भी पॉन्डर करिएगा, विचार करिएगा कि ये इमेज कितना कुछ बता रहा है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, दूसरी तरफ जिंदगी एक दूसरी है, दूसरी तरफ जिंदगी का एक एग्जाम्पल है इस बच्ची के साथ। ये बच्ची अभी जो है मासूम है। इस बच्ची को ये नहीं पता कि ये सोल्जर अंकल जो है दुश्मन है या दोस्त है। वह उनके पास गई है, वो उसको जो है बहुत अच्छे ढंग से पापा की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन शी डजंट नो कि व्हाट इज दिस, हु इज दिस, व्हाट इज दिस एंड व्हाट टाइप ऑफ मैन ही इज। उसके बाद क्या होगा कि इसमें भी मासूमियत है। उसने जीवन के उस अभी फिलॉसफी को नहीं पढ़ा जो एबनॉर्मेलिटी में आती है, क्योंकि जो बेबीज है वो इनोसेंट है, दे आर लाइक एंजल, दे डोंट नो द केमिस्ट्री ऑफ कास्ट, दे डोंट नो द केमिस्ट्री ऑफ रिलीजन। as they grow as they grow, we tell them कि you belong to this caste, you belong to this community, you belong to this nation, this is your barrier, you don't have to go there, you don't have to go there, you don't have to do this, you don't have to do that, we tell them। हम उनको बताते हैं। जब हम उनको बताते हैं तब जो है प्रॉब्लम शुरू होती है, और वहीं से हमारी लाइफ में एब्सर्डिज्म शुरू होता है। अगर कोई ये कहता है कि हमारी लाइफ में एब्सर्डिज्म नहीं है, हर पल हम एब्सर्डिस्ट लाइफ जी रहे हैं, और हर पल हम एब्सर्डिस्ट लाइफ का इनकाउंटर करते हैं। तो ये एक इमेज थी जो मैंने आपसे शेयर किया, ये एक इमेज थी जो मैंने आपसे बताया। इसी तरह से एक कोटेशन है जो मैं आपको साथ शेयर करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, काफी इम्पोर्टेंट है, और हियर आई एम शेयरिंग विद यू। या दैट इज अ यू फाइंड दिस वर्ड, आर यू गेटिंग इट? ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कोटेशन है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक स्कूल प्रिंसिपल जो कि बच गया था नाजी कैंप से, मतलब हिटलर के कैंप से, उस समय का ये कोटेशन है। और आप देखिएगा कि क्यों वहां पे थिएटर ऑफ एब्सर्ड आया था या क्यों चीजें थी। एन अपील टू टीचर्स, एक टीचर का अपील है फ्रॉम अ स्कूल प्रिंसिपल हु सर्वाइव द नाजी कैंप। और वो लिखते हैं, आई स्कूल प्रिंसिपल हु सर्वाइव द नाजी कैंप रोड, आई एम अ सर्वाइवर फॉर अ कंसेंट्रेशन कैंप। मैं एक सर्वाइवर हूँ जो कंसेंट्रेशन कैंप से बच गया हूँ। कंसेंट्रेशन कैंप का मतलब वह कैंप जहां पर जो है कास्ट कम्युनिटी के नाम पर जो है कि फला आदमी ज्यूज है,
और उस जीव्स को हिटलर ने तमाम कैंप बनाए थे, उसमें ले जा करके रखा जाता था, गैस चैम्बर में रखा जाता था, उनको मार दिया जाता था। तो उनमें से एक आदमी बच गया, तो अपनी आंखों देखा हाल बयां करता है और क्या कहता है, माई आई सा व्हाट नो पर्सन शुड विटनेस। मेरी आंखों ने उस चीज को देखा जिसे कोई भी आंखें देखना नहीं चाहती है। गैस चैम्बर्स बिल्ट बाई लर्नेड इंजीनियर्स, गैस चैम्बर बनाए गए थे इंजीनियर्स के द्वारा। चिल्ड्रेन पॉइजन बाई एजुकेटेड फिजिशियंस। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि गैस चैम्बर से बिल्ड बाई लर्नेड इंजीनियर, यही शब्द सबसे घातक है। गैस चैम्बर लर्नेड इंजीनियर्स ने बनाया था। चिल्ड्रन पॉइजन बाई एजुकेटेड फिजिशियन, जो चिल्ड्रन थे उनको एजुकेटेड फिजिशियन जहर दे रहे थे, चिल्ड्रन को, बच्चों को एजुकेटेड शिक्षित डॉक्टर जहर दे रहे थे। इनफैक्ट किल्ड बाई ट्रेन्ड नर्सेज, और जो प्रशिक्षित नर्सें थी वे नवजात शिशुओं की हत्या कर रही थी। वीमेन एंड बेबीज शॉट, औरतें और बच्चों को शॉट किया जा रहा था। एंड किल्ड बाई हाई स्कूल, एंड किल्ड बाई हाई स्कूल एंड कॉलेज ग्रेजुएट्स। हाई स्कूल जो पास थे, जो सोल्जर में भर्ती हो गए थे, सोल्जर हो गए थे या कॉलेज ग्रेजुएट्स थे, वे सारे लोग औरतों और बच्चों का कत्ल कर रहे थे। सो आई एम सस्पिशियस ऑफ एजुकेशन, इसलिए मुझे आज इस एजुकेशन पूरी सिस्टम पर डाउट है कि क्या वे लोग जो पढ़ करके इंजीनियर बने थे, उनसे ये तवक्को की जाती है, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो गैस चैम्बर बनाएंगे। क्या वे लोग फिजिशियन जो डॉक्टर बन गए थे, क्या उनसे ये उम्मीद की जाती कि वो बच्चों को जहर देने के लिए उन्होंने शिक्षा ली है? वे लोग जो ट्रेंड नर्सें थी, क्या उनसे ये उम्मीद की गई थी, ये तवक्को की गई थी कि वे जो है नवजात शिशुओं का कत्ल करेगी? वे लोग जो हाई स्कूल पास होकर के सोल्जरिंग में थे, क्या उनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि वे जो है बच्चों का, औरतों का कत्ल करेंगे? और कहते हैं हमें ऐसी एजुकेशन सिस्टम पर डाउट है। माई रिक्वेस्ट, मेरी अपील है, मेरा रिक्वेस्ट है, हेल्प योर स्टूडेंट टू बी ह्यूमन। हम अपने स्टूडेंट को समझाएं कि वे इंसान बने। हेल्प, ये समस्या ऐसा नहीं कि वी आर फेसिंग इन एशिया, we are facing in India. No, not at all. Our country is very lovable country where there is a Vasudhaiva Kutumbakam, where there is a Shanti, Shanti, Shanti. Even in the wasteland you find this word. So, लेकिन जो वेस्ट था, वेस्ट ने इतना ज्यादा उसके साथ हुआ कि वेस्ट ने बहुत सीखा वहां से, कास्ट का, जेंडर का, और कह सकते हैं कि कम्युनिटी का बैरियर खत्म हुआ काफी हद तक। फिर कह रहे कि योर एफर्ट्स मस्ट नेवर प्रोड्यूस लर्नेड मास्टर। कह रहे हैं एक टीचर का प्रयास यह नहीं होना चाहिए कि वह शिक्षित राक्षस पैदा करे, स्किल्ड साइकोपैथ्स, और ऐसे साइकोपैथ्स पैदा करे जो स्किल्ड हो, और एजुकेटेड मेडियक्स, या ऐसे लोगों को पैदा करे जो दूसरों को मारने के लिए पैदा हुए। रीडिंग एंड राइटिंग एंड स्पेलिंग एंड हिस्ट्री एंड अरिथमेटिक आर ओनली इम्पॉर्टेंट इफ दे सर्व टू मेक आर स्टूडेंट्स मोर ह्यूमन। हम जो पढ़ते हैं, हम जो लिखते हैं, हम जो स्पेल करते हैं, हम जो इतिहास पढ़ते हैं, हम जो गणित पढ़ते हैं, अगर ये हमारे बच्चों को मानव नहीं बना सकते हैं तो ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। इतना बताने का मकसद केवल ये था कि थिएटर ऑफ एब्जर्ड को आप समझ सकते हैं कि वो कोटेशन जो है, जो मैंने अभी आपसे शेयर किया, यह नाजी कैंप से, जब थिएटर ऑफ एब्सर्ड का एक अस्तित्व चल रहा था, वहां से ये चीजें आई हुई है, वहां से लिया गया। तो आई हैव गिवन यू टू पिक्चर्स। इन वन पिक्चर अ सोल्जर इज गिविंग लॉलीपॉप टू अ स्वीट बेबी, that shows compassion, that shows humanity, that shows generosity. इवन थिएटर ऑफ एब्जर्ड के आने से पहले आप सारे लोगों ने आर्म्स एंड द मैन को पढ़ा होगा। उस आर्मसाइड द मैन में यू कैन जस्ट सी द आइडियोलॉजी ऑफ राइडर, हर मदर एंड सर्जियस, रोमांटिक कॉन्सेप्ट ऑफ वार। वो लोग वार को कितना सपोर्ट करते हैं, उनके लिए वार वार हीरोइक डीड्स। और एक दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि वार को ही लेकर के ब्लशली का है, जो अपनी जान बचाने के लिए भागता है और अपने आप को कहता है आई एम अ चॉकलेट, मतलब वो नहीं कहता, उसको एड्रेस किया जाता है दो ही इज अ प्रैक्टिकल मैन, अ रीजनेबल मैन, और उसको चॉकलेट क्रीम सोल्जर कहा जाता है। तो ये जो जीवन जो आप देख रहे हैं, डार्क साइड ऑफ लाइफ, लाइट साइड ऑफ लाइफ,
आखिर एक जमाना रहा होगा जब हैमलेट जैसे लोगों का वेलकम किया जाता रहा होगा, जब रेसलिंग एक बहुत बड़ा चीज होता रहा होगा। लेकिन आज के जमाने में कौन अपने बच्चे को रेसलर बनाना चाहता है? जो रेसलर होते भी है उनका मकसद ये नहीं होता कि दे हैव टू किल एनीवन। वो एक फाइटिंग होती है, लड़ते हैं, चीजें हैं, ठीक है। लेकिन अ, जो एबनॉर्मेलिटी है ये केवल ऐसा नहीं कि वर्ल्ड वार की ही वजह से आती है। लाइफ आपको मीनिंगलेस कभी भी लग सकती है। अगर आप ये हम मैं ये कहूँ कि जो लोग जॉब नहीं पाए हैं उनके लिए लाइफ मीनिंगलेस है, तो ये बकवास है। क्यों? दोज हु गॉट जॉब, यही कानपुर में एक आईपीएस थे, वो अभी मेरे पास वो इमेज नहीं रह गई है। एक आईपीएस महोदय थे, यही कानपुर में बड़ी पोस्ट पे थे। उनकी शादी एक बड़े घराने में हुई थी, डॉक्टर से हुई थी, और उन्होंने आत्महत्या कर ली आईपीएस की पोस्ट पर। हमने पॉलिटिक्स में भी देखा है कि सचिव जो है उनको उनको आत्महत्या करते हुए हम लोगों ने देखा है ना, आप सारे लोगों ने। तो लाइफ किस स्टेज पे आपको एबनॉर्मल लगने लगे? क्योंकि जब लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं रहेगी, लाइफ में एम्बिशन बहुत ज्यादा रहेगा, लाइफ में अगर लाइफ में ह्यूमैनिटी नहीं है, लोगों की हेल्प करने का हैबिट नहीं है, लोगों के प्रति लव नहीं है, लोगों के प्रति अफेक्शन नहीं है, लोगों के प्रति जनरसिटी नहीं है, और आपके अंदर अगर हैट्रेड फीलिंग है, वह हैट्रेड फीलिंग कास्ट को लेकर हो, जेंडर को लेकर के हो, वो कम्युनिटी को लेकर के हो, वो जो है इकोनॉमी को लेकर के हो, गरीब और अमीर के बीच को लेकर के हो, रेशियल नस्ल भेद को लेकर के हो, काला और गोरा को लेकर के हो, वो सब चीजें। और अपनी परिवार में तो हम सारे लोग इसको देखते रहते, पता चली कि एक ही घर है, उस घर में चार भाई हैं, उनकी आपस में नहीं पट रही है। देवर का मतलब आपस में जो और रिश्ते होते हैं, भाभीियों की नहीं पट रही, ननद की नहीं पट रही है, हमेशा लड़ाई झगड़ा, उसका उसका उसका। कभी कभार क्या होता है, यहाँ तक सोचते हैं कि इसके बच्चे को वो कर दिया जाएगा, ऐसा कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। आई डोंट नो व्हाट लाइफ, छोटा सा लाइफ, छोटी सी जिंदगी, उसको कैसे बनाया गया। इतना मेरा बताने का मकसद ये था कि जो थिएटर ऑफ एब्जर्ड आप पढ़ेंगे, अब चूंकि इसके बाद आपको समझ में आ गया थिएटर ऑफ एब्जर्ड होता क्या, उसमें किस तरह का लाइफ दिखाया गया है, किस तरह की चीजें दिखाई गई है। मैंने आपको पहले बता दिया कि इलॉजिकल, इरेशनल, मीनिंगलेस, पेन, स्टेन, ट्राउमा, अनरेस्ट, एंजाइटी, सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, उन सब की वजह से जो लाइफ जी रहा था इंसान, उसी को प्रेजेंट किया गया और लोगों के जीने का कोई मकसद नहीं रह गया था। लोग ये भी क्वेश्चन करने लगे थे कि मैन इज नॉट द रेशनल क्रिएचर ऑफ गॉड, और लोगों का ये भी कहना था देयर इज नो गॉड एट ऑल, कोई गॉड नहीं है, क्योंकि दुनिया में वर्ल्ड वार चल रहा है, कोई इंसान को बचाने वाला नहीं है, मैन इज अल्टीमेटली ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लाइन। ये सारी की सारी चीजें रही, तो इसलिए मैंने आज आपसे बात किया। एक स्टोरी मेथड में मैंने आपको बताया। कल मैं आपसे जो है जो बात करूंगा वो पीडीएफ फाइल बना करके, खास करके थिएटर ऑफ एब्जर्ड के कौन कौन से राइटर्स हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, उसमें और क्या क्या चीजें हो सकती है उसको, क्योंकि ये एक मूवमेंट है, इसको आप केवल टर्म ना समझिए कि बस केवल टर्म को ले लिया गया और बता दिया गया कि ये मीनिंगलेस है, इलॉजिकल है, इरेशनल। यू हैव टू टेल कि हाउ डिड इट डेवलप, हाउ डिड इट कम, क्योंकि आपका बहुत सारा ड्रामा एलटी वाले में भी, यहाँ पर भी कुछ ऐसे ड्रामा है जो उससे जुड़े हुए हैं, जो आपको समझना चाहिए। जैसे द बर्थडे पार्टी, हैरोल्ड पिंटर का, हैरोल्ड पिंटर के और भी जो प्लेज रहे हैं, सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडो, सैमुअल बेकेट का एंड गेम, अल्फ्रेड जैरी का जो फ्रेंच राइटर युबुरा युबू द किंग, बहुत सारे ऐसे नेम है जो उससे जुड़े हैं। So thanks for listening me. Thanks for giving me a beautiful company. And you can here respond me कि it was my first formal class. तो जो लोग भी जुड़े हैं आप लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि हाउ डिड यू फाइंड दिस मेथड, इज इट फ्रूटफुल, was it interesting, the particular method that I use the word storytelling method, because now days things are going to be entirely changed। जो पढ़ाने का स्टाइल है, जो पेडागोजी है, वो चेंज हो रही है, उसी का हिस्सा लेकर के। तो अगर आप में से कुछ कोई कहना चाहता है तो यू कैन जस्ट से। सैयदा अंजुम मैडम ने कहा इंटरेस्टिंग, मलाबिका इंटरेस्टिंग, सुहानी गौतम यस, एज ऑफ टर्बुलेंस, मलाबिका रिडिकुलस यस, सुहानी या ठीक, ओके, आई गॉट योर रिस्पॉन्स। So I think okay, okay. Now I have to bind up this session. Okay. Meet you tomorrow.
कल आप थिएटर ऑफ एब्जर्ड पढ़ेंगे, चाहे आप इंटरनेट से पढ़ेंगे, चाहे किसी का लेक्चर सुनेंगे, चाहे जैसे करेंगे, मैं अपना एक दो वीडियो है वो अभी ग्रुप में डाल दे रहा हूँ थिएटर ऑफ एब्जर्ड को लेकर।